students, welcome you all to the SST class. From the last two classes, we are discussing Geography chapter 3rd, that is the changing face of the earth. In first class, we have discussed how the earth surface changes. These are caused by two types of forces. First, endogenic forces that originate deep inside the earth. These causes the formation of fold mountains, volcanic mountains, earthquakes and volcanoes. Then we have discussed about the exogenic forces that act on the surface of the earth. These causes the formation of beaches, rivers, deserts, plains. Then we have discussed about the endogenic forces in detail. How do these forces cause the formation of the land due to the movement of the tectonic plates? Then we have discussed about how tectonic plates move. After that, we have discussed the various landforms that are caused by endogenic forces such as fold mountains, block mountains or rivet valleys. Then we have discussed certain events that are caused by the endogenic forces that include earthquakes. How earthquake is caused, what is focus, what is epicenter. We have discussed about in the earthquake concept. Then then we have discussed what are the different magnitudes of the earthquake. If 1.0 it is minor effect, if 3.0 it is more than minor, if it is 6.0 strong effect, and if it is 9.0 and above it is great damage caused due to the earthquake. Then we have discussed about the instruments that are used to measure earthquake such as seismograph, moment of magnitude scale. Then we have discussed about the certain examples of the magnitude. In 2004 there is severe earthquake in Bhuj in the district of Gujarat, in which there is vast destruction. Then we have discussed about the earthquake that are caused in the sea water, that is known as tsunami. It is also happened in the 2004 in the Indian Ocean, 26 December 2004. It also causes vast destruction in the countries like Indonesia, India, Sri Lanka, Thailand, Maldives, etc. Now after that, we have discussed about volcanoes. Volcanoes is the opening through which magma or this smoke erupt out, and depending on the chemical composition, its speed is slow or it can be erupt explosively. Okay. About 2/3 of the volcanoes originate in the Pacific Ocean. That's why this area is known as Ring of Fire. Then after that, we have discussed about the exogenic forces that act on the surface of the earth, and is to make the main aim of the exogenic forces is to make the surface of the land flatter. And then we have discussed the agents of gradation. The process of making the gradation is the process of making land level or flat. These creates the landforms through new three processes such as weathering, erosion and deposition. Then we have discussed about the definitions of the weathering. Weathering is the process by which the rocks gets broken down into disintegrated small forces due to some extreme temperature, rainwater and biological activity. And then we have discussed about erosion is the process by which weathered rock or debris is carried to different places by the agents of gradation like wind, water and ice. Then deposition, process by which eroded material is or the sediment is deposited in different places, leading to the formation of the landform like plains and beaches.
Up to that topic we have completed. Now we are going to discuss the new topics. Agents of gradation. First is the rivers. Rivers are the active agents in changing the face of the earth. Rivers try to level the surface of the earth by wearing out the highlands through erosion and building up the lowlands through deposition. ठीक है, रिवर्स एक्टिव एजेंट्स हैं ग्रेडेशन का. ये फेस जो अर्थ का फेस होती है चेंज करती हैं. ठीक है, लेवल करती हैं, उसे स्मूथ करती हैं बाय वेयरिंग, मतलब हाईलैंड से निकल के, ठीक है, इरोजन से वो मटेरियल नीचे लेके आती हैं, फिर लोलैंड्स बनाती हैं, वहाँ पे इकट्ठा करती हैं, डेपोजिशन. द फ्लो ऑफ द रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स. जो रिवर का फ्लो है 3 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट है, अपर कोर्स में, मिडिल कोर्स में एंड लोअर कोर्स में. द ओरिजिन ऑफ द रिवर इज कॉल्ड सोर्स, while the point where it flows into the sea or the lake it is called mouth. जहाँ से रिवर निकलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सोर्स. और जहाँ पे रिवर फाइनली सी या लेक में एंटर कर जाती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, माउथ. फर्स्ट इज द अपर कोर्स. इन द अपर कोर्स where it passes through the mountains, the river flows with a great speed and force, eroding the land under it. ठीक है, अपर कोर्स में मेनली रिवर माउंटेन से फ्लो करती है. ठीक है, और क्या कहते हैं, रिवर फ्लोज विथ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स. रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और फोर्सफुली फ्लो करती है. ठीक है, और अपने साथ जो भी लैंड उनके नीचे होती है उसको बहा के लेके आते हैं. ठीक है, इरोडेड मटेरियल इज कैरिड बाय वाटर. जो इरोडेड मटेरियल होता है जिसको लेके आती है अपने साथ, किससे लेके आती है, वाटर के साथ साथ. देन द मिडल कोर्स. इन द मिडल कोर्स रिवर लीव्स द माउंटेन एंड एंटर्स द प्लेन्स. As it enters the plains its speed decreases. ठीक है, मिडिल कोर्स में रिवर्स माउंटेन से निकल के प्लेन्स में एंटर कर जाती हैं. जैसे वो प्लेन्स में एंटर करती हैं उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है. द रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग द लार्ज बेंड्स और द लूप्स नोन एज बेंडर्स. ठीक है, रिवर जब क्या कहते हैं प्लेन एरिया में आती है वो टर्न करना, ट्विस्ट टर्न मतलब बेंड करने लग जाती है, मतलब उसकी शेप चेंज होने लग जाती है. ठीक है, नए नए मतलब बेंड्स बना देती, ट्विस्ट हिलने लग जाती है, और क्या बनाती है, मेंडर्स. ओवर द टाइम द नेक ऑफ द मेंडर गेट्स नैरोअर. मतलब जो मेंडर की नेक थी वो ब्रीक होती जाती है, नैरो होती जाती है. द मेन रिवर देन कट्स थ्रू द नेक. जो मेन रिवर थी नेक से कट जाती है एंड फॉर्म्स दिस सेपरेट लेक शेप्ड like letter U. Such lakes are called oxbow lakes. हाँ जी, you can see on left side U शेप में इन्होंने जब से माउथ से कट जाती हैं वहाँ से वो क्या कहते हैं, लेक्स की फॉर्मेशन करने लग जाते हैं U शेप में. सच लेक्स आर कॉल्ड oxbow lakes. At the time the river floods its bank. जब वो रिवर अपने बैंक्स में किनारे पे पहुँचती हैं, the river receded it leaves behind the फर्टाइल सेट. जो उनके अंदर सेल जो मटेरियल होता है वहाँ पे छोड़ देती हैं. ठीक है, एंड इरोडेड रॉक मटेरियल ब्लॉट डाउन बाय द फ्रॉम द माउंटेन. जो उनके साथ रॉक मटेरियल आता है माउंटेन से वो सभी वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं. द स्ट्रेच ऑफ द लैंड एडजॉइनिंग द रिवर ऑन विच इट फ्लड्स एंड डिपॉजिट इट सेल्ड इज नोन एज फ्लड प्लेन. जहाँ पे ठीक है ज्वाइन करती हैं और जहाँ पे उनका फ्लड करती हैं, बैंक्स पे फ्लड करती है किनारे पे, और डिपॉजिट करती हैं सिल्ट उस सारे एरिया को क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन्स. ठीक है, जो किनारा होता है जहाँ पे अपने सिल्ट को डिपॉजिट करती हैं, जहाँ से वो क्या कहते हैं, दैट एरिया इज नोन एज फ्लड प्लेन्स. हाँ जी, नाउ यू कैन सी certain pics. First is showing the waterfall. Waterfall is a place in which a river course where the water flows steeply over the edge of a rocky ledge or cliff. ठीक है, वाटरफॉल मेनली अपर कोर्स में होता है, ये जहाँ पे वाटर स्टीपली मतलब काफ़ी हाइट से गिरता है. ठीक है, एज पे. ठीक है, या कोई स्टीप स्लोप पे, रॉकी एज पे, और या क्लिफ पे. वाटर फ्लोज आर कॉमनली इन द अपर कोर्स ऑफ द, ये तो हमें पता ही है वाटरफॉल्स मेनली अपर कोर्स में होता है. इन द अपर कोर्स द रिवर फॉर्म्स
वी शेप वैली, यहाँ पे वी शेप वैली मेनली वी की शेप में वैलीज फॉर्म करती हैं। इरोजन ऑफ द सॉफ्टर रॉक एट द बेस ऑफ द वैली समटाइम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप आई शेप वैली। जब जैसे जैसे इरोजन मतलब बह के जाते हैं सॉफ्टर रॉक्स, ठीक है, बेस पे, वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, आई शेप्ड वैलीज की फॉर्मेशन होती है, जिसमें क्या होता है विद ऑलमोस्ट पैरेलल वॉल्स, पैरेलल दो तरह की वॉल्स खड़ी होती हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैनियन। क्लियर। नेक्स्ट लोअर कोर्स, एज द रिवर अप्रोचेस दिस सी, जब सी में एंटर करती हैं, ठीक है, लोअर, देन द रिवर एंटर्स इनटू दिस लोअर कोर्स। बाय नाउ इट्स फ्लो इज़ वेरी स्लो, ठीक है, इस टाइम उनका फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अपर कोर्स में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, मिडिल कोर्स में थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, स्लो होना स्टार्ट होता है, और इसमें बिल्कुल स्लो हो जाता है। एज इट लोडेड विथ सेडिमेंट्स, क्योंकि इस टाइम इसके सारे रिवर में सेडिमेंट्स जो ऊपर से लेके आते हैं सभी सैंड सिल्ट वगैरह सभी इससे भरी होती है। एज द रिवर अप्रोचेज इट्स माउथ, जब रिवर अपने माउथ की तरफ जा रही है, इट लूजेज इट्स पावर टू कैरी सेडिमेंट, अपनी पावर इसकी क्या कहते हैं ख़त्म हो जाती है सेडिमेंट्स को साथ साथ लेके जाने की। एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट एट इट्स माउथ, सारे सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देती है माउथ पे, जहाँ पे वो सी या लेक में एंटर करती है। दिस रिस्ट्रिक्टेड फ्लो, इससे क्या होता है इसका फ्लो कम हो जाता है, एंड फोर्स द रिवर टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्मॉल नैरोड चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट। इससे क्या होता है इसका रिस्ट्रिक्ट कर देता है रिवर्स को स्मॉल नंबर ऑफ चैनल में टूटने में, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। उन चीज़ों उन चैनल्स को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। हाँ जी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज की देखो, रिवर मेन रिवर है, उसके बाद जब माउथ पे आती हैं तो उसकी ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है, नंबर चैनल्स में, इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टास, इसे डेल्टा भी कह देते हैं क्योंकि ट्राइंगल शेप में होता है। द सिल्ट डिपॉजिट एट माउथ, जो सिल्ट या सैंड डिपॉजिट होती है माउथ पे रिवर पे, हाईली फर्टाइल ट्राइंगुलर पैच ऑफ लैंड, ट्राइंगल शेप में पैच ऑफ लैंड बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा नोन एज द सुंदरबन डेल्टा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये एग्जांपल शो की हुई है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा कहते हैं इसे। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, ये बांग्लादेश या इधर वेस्ट बंगाल वाली साइड में है। नेक्स्ट एजेंट इज सी वेव्स। सी वेव्स मॉडिफाई द कोस्टल लैंडफॉर्म्स थ्रू द विदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन। ये भी लैंडफॉर्म्स, कोस्टल लैंडफॉर्म्स को चेंज करती है, मॉडिफाई करती है, ठीक है, विदरिंग मतलब रॉक्स को ब्रेक करके, इरोजन वहाँ से क्या कहते हैं भागे, और डिपॉजिट वहाँ इकट्ठा कर देती है, ठीक है। फर्स्ट है सी वेव्स स्ट्राइक द रॉकी शोर्स इवेंचुअली कॉजिंग देम टू क्रैक। जब सी वेव्स मतलब सी की लहरें होती हैं जब रॉक्स पे, जो रॉकी शोर लाइन पे, मतलब समुद्र के जो आसपास, जो सी के आसपास रॉक्स पे होते हैं, वहाँ पे स्ट्राइक करती हैं तो रॉक्स को क्या करते हैं, क्रैक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। व्हेन दिस क्रैक्स बिकम बिगर, जैसे जैसे ये क्रैक्स बिगर होते हैं और वाइडर, चौड़े होते रहते हैं, होलो केव्स आर फॉर्म्ड, जैसे गुफाएं बनने लग जाती हैं, होलो खाली केव्स फॉर्म होने लग जाती है। व्हेन दिस केव्स आर इरोडेड, जब यहाँ से केव्स, यहाँ पे पहले केव्स बनी, जब यहाँ से केव्स इरोड हो जाती हैं, मतलब केव्स उड़ा के ले जाती हैं सी वेव्स, लीव्स बेंड ओनली द रूफ में बैलेंस ऑन द थिन पिलर्स, रूफ सी रह जाती हैं, छतें रह जाती हैं जो पिलर्स के बेस पे खड़ी होती हैं, ठीक है। दीज फीचर्स आर कॉल्ड आर्चेस, इस फीचर्स को क्या कहते हैं, आर्चेस। व्हेन even the rocks when even the roofs get eroded, the isolated stumps of the rocks are left standing in the sea, ठीक है। जब रूफ्स भी मतलब बह के चली जाती हैं, इरोड हो जाती हैं, तो सिर्फ रॉक्स रह जाते हैं जो सी में स्टैंड होते हैं, ठीक है, सिर्फ रॉक्स, एंड दीज आर कॉल्ड स्टैक्स। पहले क्या रहता है, ठीक है, जब रॉक्स पे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, रॉक्स को क्रैक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और ये जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, यहाँ पे होलो केव्स की फॉर्मेशन होती है। जब केव्स उड़ के मतलब बह के चली जाती हैं तो फिर थिन रूफ्स रह जाती हैं जो थिन पिलर्स पे बैलेंस्ड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्चेस। फिर जब रूफ्स भी बह के चली जाती हैं, रोड हो जाती हैं, तो रॉक्स जो सी में स्टैंड होते हैं सिर्फ वो रह, उन्हें क्या कहते हैं, स्टैक्स।
हाँ जी, यहाँ देखो, सी वेव्स फॉर्म द बीचेस अलॉन्ग द कोस्ट लाइन बाय कॉन्टीन्यूसली डिपॉजिटिंग सैंड। सी वेव्स, लहरें क्या कहते हैं, बीचेस की फॉर्मेशन करते हैं जिस कोस्ट लाइन के, मतलब सी के आसपास, वहाँ पे सी मतलब सैंड को अपने साथ लेके आके कॉन्टीन्यूसली इकट्ठा करते रहते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं, उस तरह बीचेस की फॉर्मेशन होती है। When the waves attack the rocky shoreline, जब शोर पे मतलब ये क्या कहते हैं, सी वेव्स होती हैं, पत्थर पे मतलब ये अटैक करती हैं, तो उससे क्या होता है, इरोड, अब सॉफ्टर रॉक्स को अपने साथ बहा लेती हैं, सिर्फ हार्डर रॉक्स रह जाते हैं, उन हार्डर रॉक्स को क्या कहते हैं, क्लिफ्स। कॉन्टीन्यूस इरोजन कॉज्ड बाय द क्लिफ्स, कॉन्टीन्यूसली जैसे इरोजन से होने से, मतलब चलने से, बहने के साथ, क्लिफ्स इज रिट्रीटेड बैकवर्ड, क्लिफ्स क्या कहते हैं, पीछे की तरफ मूव, हार्डर रॉक पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लीडिंग बिहाइंड द वाइड रॉकी एक्सपेंस कॉल्ड इस वेव कट प्लेटफॉर्म, मतलब एक तरह वेव की शेप में रॉक्स का प्लेटफॉर्म बन जाता है, ठीक है, जो कौन से होते हैं, हार्डर रॉक्स है। सॉफ्टर रॉक उनके साथ बह जाते हैं और हार्डर रॉक्स सिर्फ रह जाते हैं, ठीक है, सी में। उन्हें क्या कहते हैं, हार्ड रॉक्स को क्या कहते हैं, क्लिफ्स। Next is the agent, that is glaciers. Glaciers are the important agents of the gradation. ये भी gradation का काफ़ी important agents है on the mountains on the near the poles, mountains या poles पे, ठीक है, क्योंकि ये मेनली सी आइस से ढके होते हैं, स्नो से। Glaciers are the slow moving rivers of the ice formed by the accumulation and compaction of the snow over the long period of time. इससे क्या होता है, क्योंकि ये माउंटेन रिवर्स हैं जो आइस से ढकी होती हैं, इकट्ठी, मतलब एक्यूमुलेशन आइस की एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होती रहती हैं, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से। द वेट ऑफ द आइस इरोड द फ्लोर ऑफ द वैलीज एंड फॉर्मिंग द डीप यू शेप्ड वैली। जो आइस का वेट होता है वो इरोड, जो वैली के फ्लोर को अपने साथ बहा के ले जाता है, और इससे क्या होता है, यू शेप्ड वैलीज बन जाते हैं जो पूरी आइस से ढकी होती हैं। अलॉन्ग विद द आइस द इरोडेड मटेरियल, मेनली जो शार्प रॉक्स होते हैं, स्क्रैप्स द वैली फॉर्म मेकिंग द डीप होलोज, उसके बीच में वो खाली होलोज बना देते हैं, खाली एरिया क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आइस इरोड करती है मटेरियल अपने साथ। When these ice melt, जैसे जैसे ये आइस पिघलती हैं, these holes are filled with water, जो ये खाली स्पेस ही वाटर से फिल्ड होती जाती है, और फिर ये क्या बनाती हैं, ग्लेशियल लेक्स। हाँ जी, यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स एंड बिट्स ऑफ द रॉक्स इन द पार्ट टू फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स या लेक्स। जैसे जैसे ये खाली एरिया होता है, जैसे जैसे आइस क्या कहते हैं, इरोड करती है मटेरियल अपने साथ, वहाँ पे क्या कहते हैं, डीप क्या कहते हैं, डी होलोज बन जाते हैं, खाली एरिया स्टार्ट हो जाता है बनना। और जैसे जैसे फिर उसके बाद आइस ठंडी होती है, मेल्ट होती है, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, होलोज, जो खाली स्पेस थी वाटर से फिल हो जाती है, और फिर एंड में क्या बनता है, ग्लेशियल लेक्स। नाउ लास्ट एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन इज विंड्स। विंड इज द एक्टिव एजेंट ऑफ द इरोजन एंड डेपोजिशन इन डेजर्ट्स। ये भी इरोजन और ग्रेडेशन का इंपॉर्टेंट एजेंट है, कहाँ पे, डेजर्ट में, ठीक है। ये अपने साथ सैंड को बहा के लेके जाता है, फिर इकट्ठा करती है सैंड को, किस एरिया में, डेजर्ट में। द ओपन एक्सपेंस ऑफ द डेजर्ट अलाउज द विंड टू फ्लो इन अनइंटरप्टेड फोर्स, क्योंकि डेजर्ट एरियाज ओपन एरियाज होते हैं जहाँ पे विंड क्या कहते हैं, विंड को अनइंटरप्टेड फोर्स से बहने की क्या कहते हैं, फोर्स होती है, जहाँ से विंड बहुत फास्ट ब्लो करती है, ठीक है, उनकी बहुत स्पीडली ब्लो करेंगे। हाँ जी, विंड इन द डेजर्ट कैरी द सैंड्स, सैंड को कैरी करती है विंड्स, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स हिट द रॉक्स इन डेजर्ट विद सिग्निफिकेंट फोर्स। विंड जो सैंड में रॉक मटेरियल को बहुत स्पीडली हिट करती हैं, कॉजिंग डैम टू इरोड, इनके अपने बहा के ले देती हैं, इरोड कर देती हैं। ऑफन द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक इज इरोडेड, जो लोअर पार्ट है रॉक का सिर्फ वही बह के चला जाता है। लिविंग बैंड द थिन बेस, जो उसका बेस होता है, या वाइडेड टॉप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ब्रॉडर होते हैं, वो वहीं रहते हैं, ठीक है। सच रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम, जो यहाँ पे रॉक रह जाते हैं सैंड में, दैट नोन एज मशरूम रॉक्स।
फाइन रॉक मटेरियल्स और द सैंड इज ऑल्सो डिपॉजिटेड बाय द विंड। जो रॉक इरोडेड मटेरियल होता है जो फाइन, वो भी क्या कहते हैं, ये सैंड डिपॉजिट करती है। कौन करती है? इकट्ठी करती है। कौन करती है? विंड। द लेयर्स ऑफ द सैंड हीप ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। जो सैंड की लेयर है एक दूसरे के ऊपर हीप होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक दूसरे इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इससे क्या बनते हैं? सैंड ड्यून्स। ये राजस्थान में बहुत पॉपुलर क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स देखने वाले हैं इधर जैसलमेर वाली साइड में। फाइन पैचेज ऑफ द सैंड आर कैरिड ओवर टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिपॉजिट ओवर लार्ज एरिया। सैंड के जो मतलब काफ़ी जो पार्टिकल में लॉन्ग डिस्टेंस पे भी पहले उड़ते हैं, फिर वहाँ पे इकट्ठे होते हैं कहीं दूसरी जगह में। ठीक है, और जो ये फाइन डिपॉजिट्स हैं ये फर्टाइल प्लेन्स बनाते हैं। ठीक है, एक तरह के। और इन प्लेन्स को क्या कहा जाता है? लॉस प्लेन्स। So with this we have completed this chapter. I hope you understood. If you have any doubt, you can ask me anytime. So with this we have completed our syllabus of May, and now there is going to start your periodic test. Now start revising for your periodic test. I have shared with you the syllabus, so if you have any doubt regarding periodic test syllabus, you can ask. Question answer of this chapter we will do after the completion of the periodic test. So thanks and have a nice day.